न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू, अग्निमित्रा पाल ने प्रेस वार्ता कर तृणमूल के नाकामी गिनवाया। যা যা প্রকল্পের মানুষ চায় ওটা ওপেনিং করে দেবেন, টাকা নেই কিন্তু। शुभेंदु के सभा के बाद तृणमूल ने जामुड़िया में सभा कर दिखाया शक्ति प्रदर्शन, मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा को बनाया निशाना। कांकसा में दिखा तृणमूल का गुटबाजी, हाई मस्ट लाइट लगाने को लेकर दो गुटों में जुबानी जंग। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, घंटों लगी लंबी जाम, प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटा। 14 वर्षीय शुभम हत्याकांड में 2 को आजीवन कारावास की सजा, एक नाबालिग को भेजा जुवेनाइल कोर्ट। आसनसोल के विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज आसनसोल के शीतला इलाके स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य भी मौजूद थे। जामुड़िया में मंत्री मलय घटक की सभा को लेकर पूछे गए सवाल पर देवतनु भट्टाचार्य ने कहा, जहां जहां भाजपा की सभाएं हो रही है वहीं टीएमसी भी सभाएं कर रही है। इससे साफ होता है कि आसनसोल में भाजपा के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं और टीएमसी का जनाधार खत्म होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की सभी सभाओं में स्थानीय जनता नहीं आ रही, इसलिए आसपास के इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है। वहीं अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के नेतृत्व में राज्य के हालात बेहद चिंताजनक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर क्षेत्र में अंधकार छाया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है और मंत्री सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं। अग्निमित्रा पाल ने दावा किया कि हाल ही में आसनसोल नगर निगम में 43 लाख रुपये के जुर्माने के एक मामले को 11 लाख रुपये लेकर रफा दफा कर दिया गया, जो गंभीर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান এপিএএস, সেখানে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যা যা প্রকল্পের মানুষ চায় ওটা ওপেনিং করে দেবেন, টাকা নেই কিন্তু। নারকেলটা ফাটিয়ে উদ্বোধনটা করে দেবেন, তারপর 2 মাস বাদে ইলেকশন শুরু হয়ে যাবে। তখন মানুষ যদি জিজ্ঞেস করে তখন বলবে যে এখন তো ইলেকশন চলে এসছে, এখন তো আর করতে পারবো না, জিতে গেলে আমরা আবার করব। ফান্ড কিন্তু নেই এই সরকারের। তৃণমূলের নেতৃত্ব আসানসোলে, তাদের কাছে জানতে চাই, আসানসোলের স্টেডিয়াম কিন্তু আপগ্রেড করা হয়নি। ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন আসানসোলে যেটি আছে সেটাকে আপগ্রেড করা হবে এবং তার সাথে সাথে কুলটি, জামুড়িয়া, চিত্তরঞ্জন, পাণ্ডবেশ্বরে ফায়ার স্টেশন তৈরি করা হবে। জামুড়িয়াতে যদি আগুন লাগে, ভগবান না করুক হয়, কুলটি বা চিত্তরঞ্জনে যদি হয়, তাহলে আসানসোল থেকে আপনাদের আবার গাড়িতে তো জল থাকে না, এটা তো আমরা প্রায়ই দেখেছি। এখান থেকে গাড়ি যাবে আগুন নেভাতে অত দূর, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রাখেননি। আপনারা মুসলিম সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে অনেক কিছু বলেন, কিন্তু আপনারা বলেছিলেন মহিলাদের জন্য উর্দু কলেজ হবে আসানসোলে, সেই কলেজ কিন্তু আপনারা করতে পারেননি। আসানসোলকে যানজট মুক্ত করবেন, আপনারা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার জন্য আপনারা বলেছিলেন ফ্লাইওভার হবে আশ্রম মোড় থেকে হাটন রোড এবং অল্টারনেটিভ রাস্তা ইসমাইলের থ্রু দিয়ে করা হবে। যানজট মুক্ত আসানসোল কিন্তু আসানসোলের মানুষ আজ অব্দি দেখতে পেল না। আপনারা গারুই নদীর সংস্কার নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু গারুই নদীর সংস্কার এবং গার্ডওয়াল আপনারা দেবেন বলেছিলেন, সেসব কোনো কিছুই হয়নি। বরঞ্চ আমরা দেখছি যে ছোটবেলা থেকে আমাদের বড় হওয়া, জন্ম এই আসানসোলে কোনোদিন বন্যা দেখিনি, কিন্তু এখন বর্ষাকালে এই নদীর সংস্কার হচ্ছে না বলে আজকে আসানসোল কিন্তু বন্যা দেখতে পাচ্ছে। এগিয়ে বাংলা, সেখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের নেতারা এই ফ্যাক্টরি মালিকদের সাথে সেটেলমেন্ট করে তারা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পকেটে ঢুকাচ্ছেন। এবং কদিন আগে আপনারা অবগত থাকবেন যে 24 লক্ষ টাকার একটা ট্যাক্স বাকি ছিল,
কিন্তু সেখানে এএমসির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত টিএমসির নেতা তিনি 11 লক্ষ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে সেটেলমেন্ট করে নিয়েছেন। তাই বাংলার মানুষ, আসানসোল জেলার মানুষকে এটাই বলার যে যদি বাঁচতে হয়, বাঁচতে চাই, তাহলে বিজেপি। में राज्य के मंत्री मलय घटक, परिवहन मंत्री स्नेहशीष चक्रवर्ती और विधायक हरेराम सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। नेताओं ने दावा किया कि जनता उसी को चुनेगी जो विकास और सेवा की राजनीति करता है, न कि उसे जो सिर्फ झूठ बोलता है। मंत्री मलय घटक ने कहा कि भाजपा नेता चाहे हर वार्ड में सभा कर ले, वे टीएमसी को नहीं हरा सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेता सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, जबकि ममता बनर्जी की सरकार साल भर जनता के लिए 100 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछले 4 वर्षों से अपने क्षेत्र से गायब है और जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। परिवहन मंत्री स्नेहशीष चक्रवर्ती ने कहा कि जामुड़िया में शुभेंदु अधिकारी की बातों पर जनता का कोई असर नहीं हुआ है। आज भी भारी भीड़ इसका प्रमाण है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने और चुनाव से ठीक पहले बंगाल में एसआईआर लागू करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। শুভেন্দু অধিকারী যেখানেই যাচ্ছেন তীক্ষ্ণ অপপ্রচার করছেন, কতগুলো অসত্য কথা বলে যাচ্ছেন। উনি কি প্রেডিকশন করলেন তার উপর তো কিছু নির্ভর করছে না। প্রেডিকশন ওদের অমিত শাহ, ওদের যে রাজনৈতিক গুরু, তিনি 2021-এও করেছিলেন 200 আসন নিয়ে নাকি বিজেপি পাওয়ারে আসবে, 77টা পেয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? এবার বিজেপির আসন সংখ্যা 30-35-এও নেবে, তার নিচে নেবে। কারণ বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই বিজেপি হচ্ছে বাংলা বিরোধী, যারা 100 দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে 3.5 বছর, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দেয়, বাংলায় 1,95,000 কোটি টাকার মতো বঞ্চনা করে রেখেছে, যারা বাংলার মানুষের ভাতে মারতে চায়, পেটে মারতে চায়, যন্ত্রণা দিতে চায়, কষ্ট দিতে চায়, তাদের স্থান বাংলায় দিতে পারে না। শুভেন্দু দেখে নেবে না। 6 सूत्री मांगों के समर्थन में भूंइया समाज उत्थान समिति की ओर से आज एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वाभिमान रैली नाम दिया गया। इस रैली में भूंइया समाज के साथ साथ अन्य आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सिंटू भूंइया ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इस महारैली के माध्यम से प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी जा रही है, लेकिन अब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते इस वर्ष भी रैली आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में उनके समाज का भी योगदान है। इसके बावजूद बिना मुआवजा और पूर्णवास दिए घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र जारी करने में बाधाएं डाली जा रही है और कई अन्य समस्याएं सामने आ रही है। सिंटू भूंइया ने बताया कि इस महारैली में सिर्फ भूंइया समाज ही नहीं बल्कि विभिन्न समाज के लोगों और बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुए, जिससे आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। आज हम लोगों का कार्यक्रम है भूंइया समाज उत्थान समिति की ओर से सभी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों के लिए के ऊपर घरों पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरह से उनको घरों के दौड़ रहा है, चाहे सेल हो, चाहे रेल हो, चाहे कोल हो, जो लोग ये लोग इन कंपनियों को बनाने वाला ये गरीब है, इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह बना करके, बंधुआ मजदूर बना करके ये कंपनियों का विस्तार किया। कोई महारतन तक पहुंचा, कोई बड़े बड़े ये सब कुछ मुकाम तक पहुंचे। आज इनके घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए बात करता है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करता है। उनके लिए हम लोग आज खड़ा होकर के करते हैं। अगर किसी भी गरीबों के ऊपर घर अगर बुलडोजर चलाया गया तो सबसे पहले हम लोग, हमारा समाज और एक गरीब, शोषित, वंचित समाज हम लोग का एकत्रित होकर के सामने आएगा और लड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आप बताइए कितने लोग गरीब लोग रहते हैं, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर गरीबों को लेकर के एक रेसिडेंशियल स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल का हम लोग डिमांड किए। ये बाबा साहब को कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। हम लोग को पश्चिम बर्धमान की धरती पर हम लोग चाहते हैं एक अंबेडकर पार्क हो, और अंबेडकर पार्क में एजुकेशनल पार्क हो, बाबा सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम पर हो, बाबा अच्छा हो। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग जीटी रोड आसनसोल स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নিব, সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। काकसा क्षेत्र के मालंदीघी ग्राम पंचायत में हाई मास्ट लाइट लगाने को लेकर ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सर्वभारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गई। इस अंदरूनी कलह में तृणमूल खेमे में असहजता बढ़ गई है। विवाद की शुरुआत आड़ा इलाके में जिला परिषद द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाए जाने को लेकर हुई। जिला परिषद के कर्माध्यक्ष समीर विश्वास ने राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार के व्हाट्सएप ग्रुप में मालंदीघी ग्राम पंचायत के उप प्रधान विश्वरूप चट्टोपाध्याय पर काम में बाधा डालने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। वहीं उप प्रधान विश्वरूप चट्टोपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा कि पंचायत को बिना जानकारी दिए काम क्यों किया जाएगा। इसी सवाल पर उन्हें अपशब्द कहे गए। उन्होंने जिला परिषद कर्माध्यक्ष पर भाजपा से गुप्त साठगांठ का आरोप भी लगाया और कहा कि इस मामले की शिकायत उन्होंने पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी से की है। दूसरी ओर समीर विश्वास ने आरोप लगाया कि इलाके में विकास कार्य करते समय उन्हें और पूर्व उप प्रधान को धमकियां दी जा रही है। उन्होंने भी उप प्रधान के खिलाफ उच्च नेतृत्व से शिकायत करने की बात कही। तृणमूल के अंदरूनी विवाद पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। जिला भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद आपसी कलह में उलझी हुई है और विकास के बजाय आपसी हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई कर रही है। আমি বললাম যে প্রাক্তন উপপ্রধান ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জি এবং আরো কিছু মানুষ আমাকে আবেদন করেছে যে দাদা স্কুলের জায়গাটা অন্ধকার হয়ে থাকে রাত্রে, হ্যাঁ, অসামাজিক কাজকর্ম ঘটতে পারে যখন তখন, তো এখানে যদি প্রাইমারি স্কুলটায় একটা হাই মাস লাইটের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। তো আমাদের 15 CFC যে কাজ কর্ম এসেছে জেলা পরিষদে, সেখানে আমি ওই কাজটি দিই এবং কিছুদিনের মধ্যেই সম্ভবত ওখানে হাই মাস লাইটটি ওখানে লাগানো হবে ওই প্রাইমারি স্কুলে। এটা আমি করেছি। আমাকে সে রীতিমতো থ্রেড, আমাদেরকে না জানিয়ে আপনি কেন করছেন? ওই ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জি ওরা বিজেপি করে, ওরা কেউ পার্টি করে না, আমাদের দলের সাথে তো থাকে না। কারণ সে কি বলছো, সে আদি তৃণমূল। এই যে আমার যে পঞ্চায়েত ভোট গেল, সেই ভোটে বুথে পর্যন্ত বসেছিল। হঠাৎ করে উনি, আমি যখন বললাম যে ভাই সে উপপ্রধান প্রাক্তন ছিল, তার কথাতে এবং কিছু মানুষের কথা আমি স্কুলে একটা হাই মাস লাইট লাগাচ্ছি, এর জন্য আমাকে তোমার কাছ থেকে আমাকে কৈফিয়ত তুমি আমাকে তলব করছো, ঠিক আছে? তো সেটা আমার কাছে সেই এটা নেই যে আমি আমি মানুষের সাথে কথা বলে আমি এলাকায় যেটা ভালো বুঝবো, কারণ এলাকাকে আমি চিনি। দীর্ঘ রাজনীতি জীবনে আমি গোটা কাকসা ব্লকটাকে আমি হাতের মুঠোর মতো চিনি। কোথায় কোন কাজটা করলে ভালো হবে, কোন মানুষরা
করছে। তো সেই জায়গায় কি করতে গিয়ে কি করলো, আমাকে থ্রেন্ডিং করতে শুরু করলো, না আপনি এটা করতে পারেন না, আমি উপপ্রধান, আমাকে আপনাকে জানাতে হবে, আপনি ফালতু, এবং মা বোনের পর্যন্ত আমাকে গাল দেওয়া, এবং ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জি যার কথাতে প্রাক্তন উপপ্রধান তাকে পর্যন্ত মা বোনের গালাগালি করেছে, বিচির ব্যাপার। সে কি গালিগালাজের ঘটনাটা সর্বৈব মিথ্যা। ঘটনা হয়েছে গতকাল আমি ওনাকে ফোন করেছিলাম, আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে কাকু আপনি যে লাইটটা বসাচ্ছেন তো আমাকে একবার জানালেন না। তো যখন এই প্রশ্ন করি উনি উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ আমাকে গালিগালাজ শুরু করে দেন। এতটাই গালিগালাজ যেটা আমি আমার লিখিত আকারে আমার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠিয়েছি, আমার দলের মাননীয় মন্ত্রী সেই প্রদীপ মজুমদার মহাশয়কে পাঠিয়েছি, আমার দলের ব্লক সভাপতিকে পাঠিয়েছি এবং আমাদের বিভিন্ন দলের যারা কর্মী আছে তাদেরকে বিষয়টা জানিয়েছি। আমি এটা বুঝতে পারছি না যে ওনার মতন এত সিনিয়র একজন লিডার, আমি এত ছোট তার থেকে বয়সে, এত নোংরা ভাষায় কি করে গালিগালাজ করতে পারেন। লাইট বসানোকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত সমিতি ভার্সেস জেলা পরিষদের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব গিয়ে পৌঁছালো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত। এর থেকে বোঝা যায় প্রতিটা স্তরে কীভাবে কাটমানি আর ভাগ বাটোয়ারার লড়াই তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে সরকারি প্রশাসনিক পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে, যেখানে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এই সিস্টেমে উন্নয়নের মানুষ ছোঁয়া পাবে, সেখানে লাইট বসানোকে কেন্দ্র করে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল, এই গণ্ডগোল সর্বত্র গিয়ে পৌঁছেছে। जामुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया स्थित चौधरी तालाब के पास सड़क निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह स्थानीय निवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पथ अवरोध के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद जर्जर है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही। इस प्रदर्शन में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि खराब सड़क के चलते समय पर शिक्षा संस्थानों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सूचना मिलते ही चुरुलिया कैंप के आईसी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस ने प्रशासन की ओर से 15 दिनों के भीतर काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पथावरोध हटा लिया गया और स्थिति सामान्य हो गई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि तय समय में काम शुरू नहीं होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। রাস্তা তো খারাপ, আমরা স্কুল যাব কেমন করে? আমাদের ডেইলি টোটোতে যেতে আসতে যেতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে সময় লাগছে। আমাদের রাস্তা যেমন খারাপ হয়, বড় গাড়ি চললে কিছুদিন আমরা কোনোদিন অ্যাক্সিডেন্টে মরে যাব। সাইকেল নিয়ে যাব, আমাদেরকে পেছন থেকে মেরে দেবে, আমরা কি করতে পারবো? আমরা সেফলি যাব, আমাদেরকে মেরে দেবে। আমাদের এত রাস্তা খারাপ, কেউ ঘর থেকে যেতে আসতে পারছে না, কাউকে ডবল লোডে আসতে পারছি না, মাকে নিয়ে দবানি ডাক্তার দেখাতে যাব, কি করে যাব? आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 कमेटी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई। रैली में संगठन के शाहिद परवेज, डॉक्टर जिसान इलाही सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर शाहिद परवेज ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने की घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इतनी उम्रदराज होने के बावजूद इस तरह की हरकत की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं डॉक्टर जिसान इलाही ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी की मांग की और राष्ट्रीय महिला आयोग से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके बेटी की तरह है। 27 वर्ष का उम्र के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने जो हरकत की है, ये हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम देश में औरतों को सम्मान करते हैं, हम देवी माता का पूजा करते हैं, हम सरस्वती माता का पूजा करते हैं, हम काली माँ का पूजा करते हैं, हम औरतों को माँ का दर्जा देते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी समझ आता है। लेकिन उन्होंने जो हरकत की है, इससे साफ जाहिर है तो कि इनका सोच शुरू से ही बीजेपी आरएसएस जैसा सोच था। आज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इस उम्र में आकर बड़ी शर्मनाक बात है। हम लोग चाहते हैं कि उसको इस्तीफा दे, नहीं तो ये आंदोलन लंबा टाइम तक चलेगा। आज हम लोग जो हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने जो एक हमारी खातून के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, उसके मुखालिफ में हम लोग खड़े हुए हैं और हमारा डिमांड है कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे और जो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन जो है उस पर उसकी जांच हो और उसके लिए आए, सामने आए। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। हीरापुर थाना अंतर्गत बानपुर निवासी 14 वर्षीय शुभम अग्रवाल के हत्या के मामले में आसनसोल अदालत ने आज दोषी पाए गए बिट्टू मंडल और उसके मामा उदय मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना 26 मार्च 2023 की है। इस मामले में बिट्टू का छोटा भाई भी दोषी पाया गया है, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसके मामले का फैसला जुवेनाइल अदालत में होगा। मिली जानकारी के अनुसार 26 मार्च को बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था और लापता हो गया। 2 दिन बाद उसकी लाश दामोदर नदी के किनारे झाड़ियों में एक बोरी में बंद मिली। हीरापुर थाने की जांच में खुलासा हुआ कि हत्याकांड में बच्चे का दोस्त का बड़ा भाई बिट्टू मंडल और उसका मामा उदय मंडल शामिल थे। पुलिस के अनुसार फिरौती के इरादे से बच्चे का अपहरण किया गया था, लेकिन मुंह पर टेप बांधने के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को बोरी में भरकर नदी किनारे फेंक दिया गया और बच्चे का मोबाइल आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास फेंक दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अपहरण के बाद आरोपियों ने बच्चे के मोबाइल से उसकी तस्वीर लेकर परिजनों को भेजी थी। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि घटना से 1 दिन पहले बिट्टू ने अंडाल में अपने प्रेमिका से फोन पर कहा था कि वो अपहरण कर जल्दी अमीर बनना चाहता है। वो 26 मार्च 2023 को वो अपने दोस्त के संग खेलने, वो दोस्त उसको बुला के ले गया है और उससे वो तालाब है कोई वहाँ पर, नाम कौन सा भैरव मंदिर है, वहाँ पर उससे मार उड़ के बोरा में बंद करके फेंका गया था। वो तो हम लोग को रिकवर हुआ 2-3 दिन के बाद रिकवर हुआ। तो हमने उससे सदर अस्पताल में खाई दे के देखा तो पूरा तरफ टेप उप से बांधा हुआ था, हाथ पीछे तरफ बांधा हुआ, तो ब्रूटली मर्डर किया। তদন্ত শুরু করে পুলিশ 3 জনকে অ্যারেস্ট করে। 3 জনের মধ্যে একজন হচ্ছে ওই বাচ্চাটারই বন্ধু, দ্বিতীয়জন হচ্ছে ওই বন্ধুর দাদা, তৃতীয়জন হচ্ছে তাদের মামা যে থাকে বিহারে, একটা হিস্ট্রি সিটার, তার এগেনস্টে মানে একাধিক বড় বড় মামলা পেন্ডিং। এরপর পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট দেয়। এতে অনেক টেকনিক্যাল এভিডেন্স পাওয়া গেছিলো। টেকনিক্যাল এভিডেন্স বলতে যেমন বাচ্চাটা যখন পোস্টমর্টম হয় ওর হাত থেকে একটা চুল পাওয়া গেছিলো, মানে 2-3টে চুল পাওয়া গেছিলো। সেই চুলগুলোর ডিএনএর সঙ্গে এই একজন অ্যাকিউজের ডিএনএ ম্যাচ করে যায়। বিট্টু মণ্ডল মানে ওই বন্ধুটার দাদার। এরপর
এরা যেটা করেছিল যে ওই ঘটনাস্থলে অ্যাকচুয়ালি এদের উদ্দেশ্য ছিল টাকা পয়সা মানে র্যানসাম করা। ঘটনাস্থলে ওই বাচ্চাটার ফোন দিয়েই বাচ্চাটার ছবি তুলেছিল। বাচ্চাটাকে প্রথমে মারধর করে, তার মুখে পুরো সেই ব্রাউন রঙের টেপ মুড়ে দিয়েছিল, দিয়ে তারপরে বাচ্চাটার ছবি তুলে মানে অবজেক্ট ছিল যে এই ছবিটা ঘরের লোককে পাঠাবো, দিয়ে র্যানসাম চাইবে। তার আগেই ওরা লক্ষ্য করে যে আশেপাশে কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে লোকের, ওরা ভয় পেয়ে যায়, দিয়ে বাচ্চাটাকে গলা শ্বাসরোধ করে মার্ডার করে দেয়, বস্তাতে ঢুকিয়ে ফেলে দেয় ওই জল জায়গাটায়। এবং ওর ফোনটা খুব পারপাসফুলি ওই আসানসোল স্টেশনের 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে একটা জায়গায় ফেলে আসে। পরে তদন্তে জানা যায় ওদের উদ্দেশ্য ছিল যে যাতে কোনো একটা পার্টিকুলার কমিউনিটির কারোর উপর সন্দেহটা হয়, এটা খুব পারপাসফুলি করেছিল। পুলিশ আসামির দেখানো মতো সেই ফোনটা রিকভারি করে এবং ফোনটা সাইবার ফরেন্সিকে পাঠায়। সাইবার ফরেন্সিক ওই ফোন থেকে ওই যে বাচ্চার যে ফটোটা তুলেছিল সেই ফটোটা রিকভারি করে এবং রিপোর্টে পরিষ্কার বলে দেয় যে এই ফটোটা কোন দিন, কোন সময়, কোন ঘটনাস্থলে তোলা হয়েছিল। झारखंड राज्य के एगारकुंड से पैदल चलकर श्री श्याम निशान यात्रा कुल्टी के नियामतपुर पहुंची। करीब 17 किलोमीटर की इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए, जो झारखंड के धनबाद जिले के एगारकुंड क्षेत्र से चलकर कुल्टी क्षेत्र के नियामतपुर स्थित श्री श्याम एवं दादी मंदिर में निशान अर्पण और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे कुल्टी के जीटी रोड स्थित एक निजी मैरिज हॉल में कुल्टी महिला मरवाड़ी समिति और कुल्टी श्री श्याम भक्तों की ओर से झारखंड से आए निशान यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ यारकुंड से श्याम शोभा यात्रा का भव्य निशान यात्रा आ रहे हैं और हम लोग श्याम जी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आसनसोल पश्चिम जोन के अंतर्गत आने वाले 17 स्कूलों के विद्यार्थियों को लेकर आज आसनसोल के चिड़ीडंगा रेलवे मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा 17 स्कूलों के शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 34 स्पर्धाएं रखी गई, जिनमें 17 स्पर्धाएं छात्रों और 17 स्पर्धाएं छात्राओं के लिए थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरदास चटर्जी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि आज के आधुनिक युग में जब बच्चे अधिकांश समय मोबाइल और लैपटॉप पर बिताते हैं, ऐसे में मैदान में आकर खेलकूद करना उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। মাঠে আসছেন, তাদের শরীর চর্চা করছেন, তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ একটা সুস্থ সবল বাচ্চা তখনই তৈরি হয় যার মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ একসঙ্গে হয়। তো আজকের দিনে মাঠে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই স্পোর্টসের ব্যাপারে স্কুল থেকে খেলাধুলায় মান উন্নয়নের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া।